Assalamu alaikum, good morning. I hope you all are fine. Today the date is 16th June 2020 and the day is Tuesday. हमने अपनी रीडिंग स्टार्ट की हुई थी चैप्टर नंबर 1 पिपी लॉन्ग स्टॉकिंग की. ओपन योर इंग्लिश बुक्स पेज नंबर 3. हमने इस पेज की हाफ रीडिंग कर ली है, बाकी आगे से हम स्टार्ट करेंगे. ठीक है, अभी तक हमने रीड क्या किया मैं एक बार वो रीडिंग रिपीट कर देती हूँ. When Pippi entered Villa Vilicula for the first time, it was a lovely summer evening. The children next door, Tommy and Annika, were not at home. They had gone to visit their grandmother for a week, and so they had no idea that anybody had moved into the house next door. On the first day after they came home again, they stood by the gate, looking out onto the street. They had no idea that there actually was a playmate so near. They were standing there considering what they should do and wondering whether anything exciting was likely to happen or whether it was going to be one of those dull days when they could not think of anything to play. And just then the gate of Villa Vilicula opened and a little girl stepped out. She was the most remarkable girl Tommy and Hanika had ever seen. She was Miss Pippi Longstocking, out for her morning walk. This is the way she looked. Her hair, the color of a carrot, were braided in two tight braids that stuck straight out. Her nose was the shape of a very small potato and was dotted all over with freckles. It must be admitted that the mouth under this nose was a very white one, with strong white teeth. Her dress was rather unusual. Pippi had made it herself. She had meant it to be blue, but there was not quite enough blue clothes, so Pippi had sewed little red pieces on it here and there. On her long thin legs she wore a pair of long stockings, one brown and the other black. She had on a pair of black shoes that were exactly twice as long as her feet. Her father had bought these shoes for her in South America, so that Pippi would have something to grow into. She loved them and she never wanted to wear any other. But the thing that made Tommy and Annika open their eyes widest of all was the monkey sitting on the strange girl's shoulder. It was a little monkey dressed in blue pants, a yellow jacket, and a white straw hat. Pippi walked along the street with one foot on the sidewalk and the other in the gutter. Tommy and Annika watched as long as they could see her. In a little while she came back, and now she was walking backward. That was because did not want to turn around to get home. When she reached Tommy's and Annika's gate, she stopped. The children looked at each other in silence. बच्चों ने एक दूसरे को खामोशी से देखा. टॉमी और अनिका ने एक दूसरे को खामोशी से देखा. At last Tommy spoke, और आखिरकार टॉमी बोल पड़ा. Why did you walk backward? तुम पिछले उल्टे कदम क्यों चली? उल्टे कदमों में क्यों चली? Why did I walk backwards? मैं उल्टे कदम क्यों चली? Said Pippi. पिपी ने कहा. Isn't this a free country? क्या ये एक आज़ाद मुल्क नहीं है? Can't a person walk any way she wants to? क्या यहाँ पे हर बंदा अपनी मर्जी से किसी भी तरीके से चल नहीं सकता? Let me tell you, मैं तुम्हें बताती चलूँ, that in Egypt everybody walks that way. कि इजिप्ट में, इजिप्ट बेटा एक कंट्री का नाम है, इसको उर्दू में मिस्र भी कहते हैं. ठीक है, Let me tell you that in Egypt everybody walks that way. मैं तुम्हें बताती चलूँ कि मिस्र में हर कोई इसी तरह से चलता है. किस तरह से चलता है? कि उल्टे कदमों चलता है. And nobody thinks it is the least bit strange. और किसी को भी ये बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता. How do you know? asked Tommy. तुम्हें कैसे पता? टॉमी ने पूछा. You've never been to Egypt, have you? तुम कभी इजिप्ट नहीं गई है ना? तुम कभी मिस्र नहीं गई है ना? I have never been to Egypt. मैं कभी मिस्र नहीं गई. Indeed I have. बेशक मैं गई हूँ. That is one thing you can be sure of. तुम्हें इस चीज़ का तो यकीन होना चाहिए. I have been all over the world and seen many things stranger than people walking backward. मैं पूरी दुनिया घूमी हूँ और मैंने बहुत अजीब चीज़ें देखी हैं, इसके अलावा भी कि लोग उल्टे कदम चलते हैं. ठीक है, अभी तक क्या बात हुई? टॉमी ने उससे पूछा कि तुम उल्टे कदमों क्यों चली, तो उसने कहा कि क्या ये आज़ाद मुल्क नहीं है? क्या ये यहाँ इस मुल्क में हर कोई अपनी मर्ज़ी से अपने तरीके से नहीं चल सकता? मिस्र में तो हर कोई ऐसे ही चलता है. ठीक है, अब इसने बताने की कोशिश की, पिपी ने क्या बताने की कोशिश की कि भाई मैं तो मिस्र में भी गई हूँ और मिस्र में तो हर कोई ऐसे ही चलता है. तो टॉमी ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता? तुम तो कभी मिस्र नहीं गई है ना? टॉमी ने अंदाज़ा लगाया कि ये तो कभी मिस्र नहीं गई होगी, इजिप्ट नहीं गई होगी. तो उसने कहा कि मैं कभी मिस्र नहीं की, मैं तो गई हूँ, मैं तो पूरी दुनिया घूमी हूँ और मैंने तो इससे भी ज़्यादा अजीब अजीब चीज़ें देखी हुई हैं. आई वंडर व्हाट यू वुड हैव सेड इफ़ आई हैड come along walking on my hands the way they do in farthest Asia.
मैं तो सोच रही हूँ कि तुम तब क्या कहते जब मैं अपने हाथों के बल चलकर आती, जिस तरह के एशिया में करते होते हैं। एशिया भी एक जगह का नाम है, हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, जिस तरह आपने एसएसटी में पढ़े थे। हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं वर्ल्ड के, उनमें से एक कॉन्टिनेंट एशिया है, ठीक है। तो पिपी ने क्या कहा कि मैं तो ये सोच रही हूँ कि तुम तब क्या कहते कि जब मैं अपने हाथों के बल चल कर आती, जिस तरह के लोग एशिया में करते हैं। तो बेटा एशिया में तो हम लोग रहते हैं ना, हम पाकिस्तान इंडिया वाले एशिया में रहते हैं। तो क्या एशिया में हम लोग हाथों के बल चलते हैं? नो। तो इसका मतलब है कि पिपी झूठ बोल रही है ना। शी इज़ लाइंग। नाउ यू मस्ट बी लाइंग। वो देखें आगे टॉमी ने क्या कह दिया कि अब तो तुम झूठ बोल रही होगी, टॉमी ने कहा। पिपी थॉट फॉर अ मोमेंट। पिपी ने एक लम्हे के लिए सोचा। यू आर राइट, शी सेड सैडली। तुम ठीक कह रहे हो, उसने उदास होकर जवाब दिया। आई एम लाइंग। मैं वाकई में झूठ बोल रही हूँ। क्या झूठ बोला पिपी ने? कि एशिया में लोग पैरों के बल हाथों के बल चलते हैं, ठीक है। इट्स विकेड टू लाई। झूठ बोलना बुरी बात है, सेड आनिका। आनिका ने कहा, who had at last gathered up enough courage to speak, जिसने आखिरकार इतनी हिम्मत जमा कर ली थी कि वो बोल सकती। Yes, it is very wicked to lie. हाँ, ये वाकई बहुत गलत बात है झूठ बोलना, said Pippi even more sadly. पिपी ने मज़ीद दुख से जवाब दिया। But I forget it now and then. लेकिन मैं भूल जाती हूँ बार बार। And how can you expect a little child like me to always tell the truth? और तुम हमेशा मुझ जैसे छोटे बच्चे से सच बोलने की तवक्को भी कैसे कर सकते हो? When my mother is an angel, कि जब मेरी अम्मी, एंजल कहते हैं फरिश्ता, ठीक है, फरिश्ता को, कि जब मेरी अम्मी एक फ़रिश्ता है। अब फ़रिश्ता होने का क्या मतलब है कि ये बताना चाह रही है कि मेरी अम्मी अल्लाह ताला के पास चली गई हैं, मेरी अम्मी की डेथ हो चुकी है। एंड माई फादर इज़ किंग ऑफ अ कैनिबल आइलैंड। और मेरे फादर जो हैं, मेरे अबू क्या हैं, वो एक जजीरे के किंग हैं, बादशाह हैं। कैनिबल जजीरा कौन सा होता है? जजीरा तो पहले क्या होता है? जजीरा वो जगह होती है कि समंदर के बीच में एक ऐसी जगह जो खुश्की वाली हो, उसको आप जजीरा कहते हैं, ठीक है। समंदर में जो पानी होता है, उस पूरे पानी में कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे खुश्की हो, वहाँ पे पानी ना हो, उसको आप जजीरा कहते हैं। और कैनिबल आइलैंड, कैनिबल जजीरा क्या हुआ? कैनिबल कहते हैं ऐसी जगह को जहाँ पे लोग इंसानी गोश्त खाते हैं, ठीक है, जो आदमखोर होते हैं, ठीक है, जो कच्चा गोश्त खाने वाले। तो ये वो क्या कह रही है कि मेरे फादर क्या है, वो एक कैनिबल जजीरे के बादशाह हैं, और मेरी अम्मी की तो डेथ हो चुकी है, वो तो एंजल बन चुकी हैं भाई, ठीक है। एंड आई हैव सील्ड ऑन द ओशियन ऑल माई लाइफ। और मैंने पूरी ज़िंदगी समंदर पर ही सफ़र किया है। देन पिपी स्माइल्ड एंड कंटिन्यूड। फिर पिपी ने मुस्कुराई और मज़ीद बोली, एंड लेट मी टेल यू, और मैं तुम्हें बताती चलूँ, that in the Congo there is not a single person who tells the truth, कि कोंगो में कोई एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो कि सच बोलता हो। They lie all day long, वो सारा दिन झूठ बोलते हैं। बेटा कोंगो भी अमेरिका, जो हमारा कंट्री है, उसकी, अमेरिका कॉन्टिनेंट भी है, अमेरिका की एक जगह है, उसको आप कोंगो भी कहते हैं, ठीक है। तो कोंगो वाली जो बात इसने की कि इसने कोंगो के बारे में कुछ बताया, अब ये बात तो ठीक नहीं उसने की होगी कि वहाँ पे तो कोई भी सच नहीं बोलता, लेकिन एटलीस्ट कोंगो वो ज़रूर गई होगी, क्योंकि आप ये देखें कि आपने यहाँ पे पढ़ा था कि उसके फादर ने साउथ अमेरिका से उसके लिए जूते ख़रीदे थे, ठीक है, उसके लिए जूते लिए थे। तो कोंगो भी अमेरिका में है, ठीक है, तो कोंगो ज़रूर गई होगी पिपी, ठीक है। हम यहाँ इस पैराग्राफ में ऊपर से स्टार्ट करते हैं। येस, इट इज़ वेरी विकेड टू लाई। हाँ, ये वाकई बहुत गलत बात है झूठ बोलना, सेड पिपी इवन मोर सैडली। पिपी ने मज़ीद दुख से जवाब दिया। बट आई फॉरगेट इट नाउ एंड देन, लेकिन मैं बार बार भूल जाती हूँ। एंड हाउ कैन यू एक्सपेक्ट अ लिटिल चाइल्ड लाइक मी टू ऑलवेज टेल द ट्रूथ व्हेन माई मदर इज़ एन एंजल एंड माई फादर इज़ किंग ऑफ अ कैनिबल आइलैंड।
और तुम मुझ जैसी छोटी बच्ची से सच बोलने की तवक्को भी कैसे कर सकते हो जब मेरी अम्मी फौत हो चुकी हों और मेरे फादर जो है वो एक बादशाह हों एक जजीरे के. एंड आई हैव सील्ड ऑन द ओशन ऑल माई लाइफ. और मैंने सारी ज़िंदगी समंदर पर ही सफ़र किया हो. देन पिपी स्माइल्ड एंड कंटिन्यूड. फिर पिपी मुस्कुराई और मज़ीद बोली, एंड लेट मी टेल यू दैट इन द कॉन्गो देयर इज़ नॉट अ सिंगल पर्सन हु टेल्स द ट्रूथ. मैं तुम्हें ये भी बताती चलूँ कि कॉन्गो में एक भी बंदा नहीं है जो सच बोलता हो. दे लाई ऑल डे लॉन्ग. वो सारा दिन झूठ बोलते हैं. बिगिन एट 7 in the morning एंड कीप ऑन अंटिल सनडाउन. वो सुबह 7 बजे झूठ बोलना शुरू करते हैं और शाम ढले तक, सूरज ढले तक झूठ ही बोलते रहते हैं. सो इफ़ आई शुड हैपन टू लाई नाउ एंड देन, तो इसलिए अब मैं अगर कभी कभार झूठ बोल दूँ, यू मस्ट ट्राई टू एक्सक्यूज़ मी. तो तुम प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना. एंड टू रिमेंबर दैट इट इज़ ओनली बिकॉज आई स्टेज इन द कॉन्गो अ लिटिल टू लॉन्ग. और ये याद रखना कि मैंने कॉन्गो में कुछ ज़्यादा ही वक्त गुजार लिया है. वी कैन बी फ्रेंड्स एनी वे कांट वी. हम दोस्त बन सकते हैं, क्या हम नहीं बन सकते? बन सकते हैं ना. ओह श्योर सेड टॉमी. ओह ज़रूर, टॉमी ने कहा. एंड रियलाइज्ड सडनली. और उसे अचानक ही ये एहसास हुआ that this was not going to be one of those dull days. कि उसे एहसास हुआ फ़ौरन अचानक से कि आज वही बोरिंग सा दिन नहीं गुजरने वाला. By the way, would you come and have breakfast with me? वैसे क्या तुम मेरे साथ अंदर आकर नाश्ता करोगे? Asked पिपी. पिपी ने पूछा. Why not? क्यों नहीं? said टॉमी. टॉमी ने कहा. कम ऑन लेट्स गो. हाँ ज़रूर चलो. पिपी ने उनसे क्या पूछा कि क्या तुम मेरे साथ नाश्ता करोगे? तो टॉमी ने कहा हाँ ज़रूर, क्यों नहीं करेंगे, ज़रूर करेंगे, चलो. ओह यस लेट्स सेड आनिका. ओह हाँ चलो, आनिका ने जवाब दिया. बट फर्स्ट आई मस्ट इंट्रोड्यूस यू टू मिस्टर निल्सन. लेकिन पहले मैं तुम्हारा तारुफ मिस्टर निल्सन से करवा दूँ, सेड पिपी. पिपी ने कहा. एंड द लिटिल मंकी टुक ऑफ हिज कैप एंड बोड पोलाइटली. और छोटे बंदर ने अपनी टोपी उतारी और शाइस्तगी से नीचे की जानिब झुका. ठीक है. पिपी के जो बंदर था उसका क्या नाम था? उसका नाम था मिस्टर निल्सन. पिपी ने मिस्टर निल्सन को उनसे तारुफ करवाया, उनसे मुलाकात करवाई, उनसे इंट्रोड्यूस करवाया. और जब उसने इंट्रोड्यूस करवाया तो मंकी ने अपनी कैप उतार कर शाइस्तगी से नीचे की जानिब झुका. हमारी आज की रीडिंग यहीं तक थी. आपने इस रीडिंग को अगेन, जिस तरह पिछली रीडिंग के लिए भी हमने किया था कि आपने 3 times 4 times इसको बार बार पढ़ना है, इसकी ट्रांसलेशन करने की कोशिश करनी है. जहाँ से समझ ना आए वहाँ से दोबारा वीडियो को प्ले करें, दोबारा सुने, बार बार सुने, ताकि आपको बहुत अच्छे से आ जाए. और घर में किसी बड़े को सुनानी है. हम बाद में इसके वर्ड्स मीनिंग करेंगे और ट्रांसलेशन एक्सरसाइज करेंगे. उसके लिए आपको इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है. हैव अ नाइस डे. अल्लाह हाफिज़.